Hello student, today we learn about that is infertility. That is the infertility means the person or humans or couples that cannot capacity to develop the progeny. That is called infertile. What is the reason of infertile? There are many reasons related to that is the infertility. That person or that couple, no you can say person, couple. That is that parents or that couple which cannot produce young one is called infertile. What is the reason of infertility? There are two reasons. Both partners may be that is the reason of the infertility. If any partner have any genital disturbances, then they cause infertility. Otherwise, maybe both infertile, maybe one infertile, maybe possibility. So, what is the reason of infertility? We see here infertility for male. Male have infertility for male. You see here what is the reason of infertility for male? First reason, low sperm count. Low sperm count. Low sperm count. If numbers of sperms is low, then the sperm cannot fertilize the ovum. First, we see here what is the reason of infertility in the males. First, low sperm count. So, count sperm if the low counting, then they cannot capacity to that is the penetrate the ovum and that is they reach the ovum and fertilize in fallopian tube. Second reason that is called oligospermia. This is the oligospermia, a disease. Oligospermia. Oligospermia is the disease in which the any person have the numbers of sperm per ml that is a low counting, that are called oligospermia, that cannot fertilize the ovum, then couple will be infertile. Second, that is first is oligospermia. First disease in male, spermia. Second reason for male, that is the poor sperm motility. Poor sperm motility. Sperm motility. If the sperm have no energy, or less energy, they are less motile, then they cannot reach on fallopian tube and they do not that is fertilize the ovum. That couple will be infertile. So poor sperm motility also a reason. Third reason, or you can say poor sperm motility, weak sperm. Weak sperm. If sperm is weak, then it cannot fertilize the ovum, so it is reason of the infertility in the couple. The male reason for male. Third, block sperm duct. Blockage in sperm duct. Blockage in sperm duct. Suppose sperm do not release, semen will be released, but sperm do not mix in semen. The duct which carries sperm from testis to that is the penis, that have blockage, some blockage. So maybe sperm do not enter in the semen. So also a reason that is the infertility of the male. So if the male infertile, three main reason for infertility. So we can improve these reason with the help of that is that is a medical advisor that can person that can be cured with the help of some medicines, and maybe we can make the fertile. So these are the three reasons for male. Infertility for female, you see here. 40% reason is this for infertile. There are many lot of reasons. Sperm that is no properly gametogenesis, maybe that is hormonal disturbance. There is a lot of that is disturbances, but 40% reason is this for human and male. So what is the reason for female infertility? Female को देखिए, female infertility. What is the reason for female? First, irregular ovulation. Irregular ovulation. Ovulation. Irregular ovulation देखें. If the irregular ovulation, it means the menstrual cycle will be disturbed. If the menstrual cycle is regularly maintained, then at the 14th day of the menstrual cycle
ovulation occur due to the hormone, that is the LH, luteinizing hormone. If hormonal disturbances, menstrual cycle is irregular, then maybe first reason, that is irregular ovulation. Ovulation time is irregular, maybe 28 day, maybe first 3-4 day, maybe any, no proper way. So these are also a reason of the infertility. Second reason, blockage of fallopian tube. Blockage of fallopian tube. Blockage of fallopian tube. अगर fallopian tube ब्लॉक है किसी वजह से, कोई बैरियर है, that cannot be, that is the ovum release and fertilization occur within the fallopian tube. Ovum released by ovary and fertilization occur in fallopian tube. If fallopian tube blockage, then sperm and ovum cannot meet to, that is they cannot meet to each other, then they cannot fertilize. Fusion of gametes no takes place. So main reason in female, that is the fallopian tube no proper blockage, disturb, maybe something reason. The 40% the infertility reason is this. Third reason in female, abnormal uterus. Abnormal uterus. Suppose fertilization occurs properly, but uterus is no proper. No cavity to, that is the bear the fetus or bear the embryo. Maybe reason, uterus is no proper way. Then 40% infertility reason in our colony or our that is population is that is this: irregular ovulation, blockage of fallopian tube, abnormal uterus. So these are three main reasons in female infertility. So suppose any reason, maybe male, maybe female, maybe both, then if any one have any disturbances, then both couples are maybe infertile. So first of all we go to doctor, and doctor gynecologist, that is the diagnose, or that is with the help of some scientific devices, then they clear what is the problem, male problem, female problem in both, then they cure. So science also develop a device, the person that are infertile, the devices by which the science make infertile couple to fertile couple. Because life have aims, that is all organisms have characters that they produce same type of hormone. So they make the complete couple. So this is also that is the main work of the human beings, that they develop the progeny. So this is for complete man and complete woman. So these are that is what can our science do in the field of infertility. इनफर्टिलिटी के फील्ड में हमारा साइंस क्या कर रहा है, तो आइए देखते हैं द डिवाइसेज बाय विच द एनी इनफर्टाइल कपुल चेंज इनटू फर्टाइल कपुल। तो उसको लिए हम देखेंगे, आपके यहाँ एक नई डिवाइस दी गई, साइंटिफिक डिवाइसें दी गई हैं। देयर आर द डॉक्टर हु नो अबाउट दैट इज दीज आर्गन, रिप्रोडक्टिव आर्गन कॉल्ड गायनेकोलॉजिस्ट। तो वहाँ सब साइंटिफिक डिवाइसें हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट यूज करके पहले पता लगाता है, तब उसकी रेमेडी करता है, तो डायग्नोसिस करने के बाद तब उसको जो है क्योर करता है। तो देखें क्या है, किस प्रकार से हम उसका क्योर कर पाएंगे। कुछ ऐसी ड्रग आई हैं, फर्टिलिटी ड्रग हैं, जैसे बताऊं आपको लोमीफेनिसिट्रेट, नेम ऑफ मेडिसिन दैट इज कॉल्ड लोमीफेनिसिट्रेट, लोमीफेनिसिट्रेट, name of the medicine, लोमीफेनिसिट्रेट is the medicine. The commercial name is called Clomid. Commercial name Clomid is the fertility drug, the very effective drug, fertility drug. It make the people infertile to fertile. Their name is Clomid. Commercial name is the Clomid. This is the fertility drug. It is called fertility drug. So it is a fertility drug that are, what is the chemical name, that is lomephene-citrate, and commercial name is Clomid. Some other medicine also, they are costly but very effective medicine, that called, this medicine is called fertility drug. It is called fertility drug. So we can use this fertility drug
to maximum people that are infertile change into fertile. If no, that is a surgical that is the disturbances, then it is proper. Some disturbances hormonal, then it can complete it. So these are the first thing is the fertility drug also used by that couple. Second thing, that is there are ART center. आप सुने ART सेंटर, ART सेंटर शहरों में खुले हुए हैं, आप जाते होंगे, लिखा होगा ART सेंटर। ये क्या है देखा जाए, इट इज ART सेंटर इज द सेंटर वेयर द इनफर्टाइल कपुल चेंज इनटू फर्टाइल कपुल। तो क्या करता है ART सेंटर, इसका नाम है पूरा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये उनके लिए कारगर है जो इनफर्टाइल हैं, उनको फर्टाइल में चेंज कर देगा। तो उनकी पता लगा लेंगे क्या डिस्टर्बेंसेज है, क्या क्या उसमें डिवाइस है। इसमें ART सेंटर में होता है, एक एक को देखते हैं। इसमें होता है IVF। इसमें पहला काम इसमें करते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आप जिसका नाम सुने होंगे टेस्ट ट्यूब बेबी जो सुने हैं, ये इसी की देन है, इन IVF से बनाया गया है। तो फर्स्ट जो आपको बताया था आपको 1978 में भी इसी फील्ड में हम टेस्ट ट्यूब बेबी के फील्ड में सफल हुए। अब पहले जो बेबी थी वो लुइस ब्राउन, पहली फर्स्ट बेबी जो बनाई गई टेस्ट ट्यूब बेबी, उसका नाम था लुइस ब्राउन 1978 में। अब हम उस समय सफल हो चुके थे इस सिस्टम में। तो देखें क्या है ART सेंटर, IVF क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखा जाए व्हाट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो लुइस ब्राउन 1978 फर्स्ट दैट इज द टेस्ट ट्यूब बेबी। वी सी हियर दैट इज व्हाट हैपन इन विदिन द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF में हम करते क्या हैं, इनमें उनके लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिनमें मेल और फीमेल में कोई डिस्टर्बेंसेज हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो फर्टिलाइजेशन हम क्या कराते हैं कि बाहर करा देते हैं टेस्ट ट्यूब में। मेल और फीमेल के, मेल के ओवम को, मेल के स्पर्म को फीमेल के ओवम को टेस्ट ट्यूब में या किसी कंटेनर में हम उसको जो है टेस्ट ट्यूब हो या कोई ग्लास कंटेनर हो, कोई कंटेनर उसमें मिक्स करके और उसमें क्या करते हैं कि उन्हें फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। उसी का नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, IVF है। द डिवाइसेज, मेनी डिवाइसेज दैट आर रिलेटेड टू IVF। इसमें हम आपको एक गिफ्ट बताते हैं, गिफ्ट साइंस एक गिफ्ट देता है उनके लिए जो इनफर्टाइल हैं, उनके लिए गिफ्ट देगा। गिफ्ट क्या है देखा जाए, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, इसी का शार्ट नाम है ट्रांसफ़र। इनमें करते क्या हैं, मेल और फीमेल के गैमिट को लेकर के फैलोपियन ट्यूब में साइंटिफिक डिवाइस से ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि दोनों में कोई ऐसी डिस्टर्बेंस है जिससे मिल नहीं पा रहे हैं। तो मेल के स्पर्म को फीमेल के ओवम को निकाल लेते हैं और ले करके कहाँ ले आते हैं कि ले आके फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। इसको गिफ्ट कहते हैं। गैमिट, मेल फीमेल गैमिट क्या है, स्पर्म और ओवम। इंट्रा माने विदिन दी, फैलोपियन माने फैलोपियन ट्यूब, ट्रांसफ़र माने ट्रांसफ़र करते हैं। अब वहाँ दोनों मिलकर फर्टिलाइज हो जाएंगे और फर्टिलाइज होने के बाद कहाँ आ जाएंगे कि यूटेरस में, वहाँ इम्प्लांट हो जाएंगे, तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी, दैट इज द कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी but also can be done, and that is a very effective technology for those couple which have that is any disturbances by which their sperm and ovum cannot mix, that is fertilize to each other। तो इसके लिए हम लगाते हैं, गिफ्ट देते हैं। गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र उनके लिए कारगर होते हैं जिनके गैमिट आपस में मिल नहीं पाते हैं। चलो भाई, तो हमने गिफ्ट बताया, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। कुछ लोगों में दूसरी चीज़ होती है, गिफ्ट नहीं देते, हम गिफ्ट देते हैं। ZIFT, आपको बहुत पूछा गिफ्ट क्या है। गिफ्ट में क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इंट्रा
इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, इसको जिफ्ट कहते हैं। जिफ्ट में जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, इसमें क्या करते हैं, इस मेल और फीमेल दोनों के सपोज टेस्ट ट्यूब में ही या किसी कंटेनर में इसमें स्पर्म को ओवम को डाल देंगे, स्पर्म इसमें डाल देंगे, स्पर्म तमाम इसमें लगे हुए हैं, यहाँ फर्टिलाइज करा लेंगे बाहर, तो बन क्या जाएगा यहाँ से जाइगोट, तो उससे क्या बन जाएगा जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इस जाइगोट को लेकर के कहाँ ले आते हैं, हमारे पास डिवाइसें हैं, साइंटिफिक डिवाइसें जिससे उसको ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। तो जब जाइगोट को वहाँ डाल देंगे फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिखाए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट जिसको कहते हो आप, तो वहाँ जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो फर्टिलाइज हो चुका है ऑलरेडी जाइगोट है, अब धीरे धीरे डिवीजन शुरू हो जाएगा, 2, 4, 8 सेल में आके ब्लास्टोमियर या ब्लास्टोसिस्ट ले आकर के यूटेरस में क्या होगा, यूटेरस में अपने आप चला आएगा और वहाँ जाके इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांटेशन कहते हैं उसको। अब इसको हम गिफ्ट कहते हैं। तो अगर जाइगोट को ट्रांसफ़र करेंगे तो गिफ्ट, और गैमेट को ट्रांसफ़र करेंगे तो गिफ्ट। ये सब हैं क्या, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है क्या, IVF सब बता रहे हैं IVF। अच्छा, एक आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन वीवो होता है, जब फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो इन वीवो बोलते हैं, अब बाहर कराते हैं तो इन विट्रो बोलते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF की टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। ऐसा होता कहाँ, ART सेंटर, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। चलो भाई गिफ्ट जिफ, कभी कभी IUI एक टेक्निक है, क्या करते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनाइजेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI बोलते हैं इस टेक्निक को। कभी कभी इसको हम यूटेरस में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं और वहीं इंसेमिनेशन कर देते हैं, ओवम को और स्पर्म को वहीं फर्टिलाइज करके वहीं जो है IUI बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन, यूटेरस में ही ट्रांसफ़र करते हैं, इंसेमिनेशन। तो IUI एक टेक्निक है जिससे हम ये भी काम करते हैं। कभी कभी स्पर्म जो है क्या करता है, इतना कमज़ोर है कि पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसकी मोटेलिटी कम है, तो क्या करते हैं हम एक कंटेनर में इस ओवम को ले लेते हैं, और स्पर्म ओवम है, ये ओवम है, ओवम को ले लेंगे और ले करके बाहर उनको इंजेक्शन से, इसे स्पर्म नहीं जा पा रहा है तो सीमेन को इंजेक्शन से इसमें प्रवेश करा देते हैं, उसको कहते हैं ICSI, कंफ्यूजन ना हो, ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन से इंजेक्ट कर देते हैं, तो यह पॉसिबल हो जाता है कि फर्टिलाइज हो जाता है, फिर जाइगोट है, इसको फिर फैलोपियन ट्यूब में चाहे यूटेरस में ट्रांसफ़र कर देंगे, या इसको डिवाइड होने देंगे, ब्लास्टोमियर बन जाएगा 8 सेल का, यूटेरस में डाल देंगे, तो इसको कहते हैं ICSI। यह सब हमारे पास डिवाइसें हैं जिनके आधार पर हम किसी भी इनफर्टाइल कपुल को फर्टाइल कपुल में चेंज कर लेते हैं। अब चेंज करने के लिए हमारे पास सब ART सेंटर में होता है, ART सेंटर में। अब किसको किसकी ज़रूरत है, कौन सी डिवाइस की ज़रूरत है, कहाँ डिस्टर्बेंसेज हैं, उस आधार पर हम सिलेक्शन करते हैं कि क्या कराएंगे उनको, किस प्रकार से हम उनको इनफर्टाइल को फर्टाइल में चेंज करेंगे। कभी कभी ही देखा गया किसी फीमेल का यूटेरस ही प्रॉपर नहीं है और वह जेनेटिकली वह डिस्टर्ब है फीमेल में, तो इस स्थिति में सोचा कि लोगों ने कि अगर मान लो फर्टिलाइज करा के ट्रांसफ़र भी करे तो यूटेरस प्रॉपर नहीं है, उसकी कैपेसिटी है ही नहीं बियर करने की एम्ब्रियो को, उसकी जेनेटिकली वह बाई बर्थ ही गड़बड़ हो चुका है, तो बाद में पता चलता आफ्टर मैरिज। तो उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए भी ART ने एक नई टेक्निक बनाई, आप सुने होंगे, बहुत कॉमन और बहुत ही मशहूर टेक्निक है, कॉस्टली है, थोड़ा टेक्निकली और कॉस्टली है, लेकिन वो भी काम कर रही है। सरोगेसी सुने होंगे आप, सरोगेसी। आप बताओ सरोगेसी क्या, आपको ही बता दें कि सरोगेसी क्या होती है।
कभी कभी जिस फीमेल की यूटेरस प्रॉपर नहीं है, नो कैपेसिटी टू बियर द एम्ब्रियो, अब उनको बच्चे चाहिए, तो बच्चे की कैपेसिटी धारण करने की है ही नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, एक फीमेल को हायर करते हैं, किराए पर खरीदना, हायर करना बोलते हैं। वह फीमेल जिसके पास बच्चे हैं, यूटेरस प्रॉपर है, उसके बच्चे की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम कह करके ज़बरदस्ती नहीं उसको हायर करते हैं कि देखो मेरा एक काम कर दीजिए, आप मुझे एक बच्चे को आपको मेरे पालना है और बच्चे दे करके आपका काम मुझे पूरा हो जाएगा। तो करते क्या है, अगर वो तैयार हो गई फीमेल तब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है, गायनेकोलॉजिस्ट, कि जो फीमेल के ओवरी मान लीजिए सही है तो उनके ओवरी से ओवम ले लेता है, ओवल्यूशन करा लेगा, हार्मोन डाल करके मल्टी ओवल्यूशन टेक्निक बनाते हैं, मोएट। तो अब एक टेक्निक हार्मोन डाल करके बहुत ज़्यादा ओवल्यूशन करा लेते हैं, ओवम निकाल लिए, और उनके स्पर्म के स्पर्म निकाल करके इसमें फर्टिलाइज करा दिया आउटसाइड, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा दिया आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने के बाद इसको ले आ करके उस फीमेल के चाहे फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, क्योंकि उसका तो पूरे आर्गन प्रॉपर हैं। अब जेनेटिकली बच्चा किनका होगा कि जिनके स्पर्म और जिनके ओवम है, और इसको ले आ करके उस जो सरोगेट मदर है, सरोगेसी बोलते हैं, वो सरोगेट मदर कही जाती है, बस उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, डॉक्टर ट्रांसफ़र करेगा। तो जब चाहे गिफ्ट कर दे, चाहे गिफ्ट कर दे, जो भी डिवाइस लगा दे, या उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र IUT कर दे, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र कर दे, कहीं ट्रांसफ़र कर देगा। जब ट्रांसफ़र कर देगा तो वहाँ इम्प्लांटेशन हो जाएगा, और 9 महीने तक उनके सुपरविजन में डॉक्टर के रहेगा। उनके यहाँ न्यूट्रिएंट भी देंगे, वो लोग बड़े लोग हैं, न्यूट्रिएंट देते रहते हैं। जब बच्चा आफ्टर दैट इज मैच्योरिटी 282 डेज दैट द टाइम ऑफ डिलीवरी दे प्रोड्यूस ए हेल्दी बेबी। अब वो बेबी ले लेंगे, फिर उसको जो पैसा हायर किया, पैसे पर जो बात हुई है दे देंगे, और जो भी उनकी डिवाइसें दे करके और बच्चे को अपना लेंगे। तो जेनेटिकली बच्चा तो इन्हीं का होगा, बस वो माँ सरोगेट मदर कही जाती है, उसी को कहते हैं सरोगेट मदर, सरोगेट मदर, सरोगेट मदर, यही है सरोगेसी। तो उनके लिए भी एक तरीका साइंस ने अपनाया कि जिनके यहाँ ऐसी दिक्कत है तो उनके लिए हम सरोगेसी एक डिवाइस डेवलप किए हैं। ऐसी माँ को सरोगेट मदर कहते हैं। आप वह नर्सिंग मदर, सरोगेट मदर है जो बच्चे दे करके नर्सिंग करके तो उनको दे देती है, उनके पास बच्चे हो जाते हैं, उनके जेनेटिकली उन्हीं के बच्चे होते हैं। ये डिवाइस हमने बताया आपको सरोगेट मदर की। चलो भाई, हमने इतनी चीज़ें आपको बता दी किस प्रकार से किसी इनफर्टाइल को फर्टाइल बनाए जाते हैं। तो इनफर्टिलिटी का जो सिस्टम हमारे यहाँ बहुत लोग इनफर्टाइल रह जाते हैं, उनके लिए अब साइंस ने बहुत टेक्निक दी है। किसी न किसी टेक्निक को अडाप्ट करके इनफर्टाइल कपल को फर्टाइल कपल साइंस बना रही है। आपको बताएं कि एक टेक्निक और है, मान लीजिए एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है और उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया, हमको पता ही नहीं, और आफ्टर 9 मंथ पता चलेगा कि बच्चा तो हैंडीक्रैफ्ट है, फिजिकली मेंटली क्या उसमें दिक्कत आ गई, क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गए, 45 हो गया, 47 हो गया, तमाम बीमारियां, मंगोलायड आईसी, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ए लॉट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी दैट आर चाइल्ड आर प्रेजेंट। उनके लिए साइंस ने एक तरकीब अपनाई है, उसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस क्या है कि हम ये पहले पता लगा लेते हैं द एम्ब्रियो विच आर डेवलपिंग इन द यूटेरस ऑफ द मदर दैट आर प्रॉपर और जेनेटिकली इम्प्रॉपर। कहाँ गड़बड़ी उसमें हो रही है, गड़बड़ी है कि नहीं है, प्रॉपर है तो उसको डेवलप कर देंगे। वरना आपको 1971 में एक एक्ट बने, MTP के लिए एक्ट ही बना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 1970 एक्ट में हमने बताया था, वहाँ एक एक्ट बन गया है जो पूरा पालन तो उसका 72 में हुआ, फिर उसका रिवीजन 75 में किया गया, लेकिन 1970 एक्ट में बना दिया गया है कि अगर कोई एम्ब्रियो ऐसा है या ऐसा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है जिसको दोनों को खतरा हो, या माँ को खतरा हो या एम्ब्रियो खतरा हो, तो एबार्शन कराए जा सकते हैं। दैट कैन बी मिसकैरिएज आर एबार्ट। सो इसके लिए क्या है कि अगर पता लग गया एमनियोसेंटेसिस से कि बच्चा प्रॉपर नहीं होगा तो उसका मिसकैरेज कराया जा सकता है, एबार्शन कराए जा सकते हैं। उसके लिए टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस। हमने बताया था कि जो चाइल्ड होता है उसके 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइड, योक्साइट। तो जो एम्ब्रियो होता है वह एक लिक्विड के अंदर बंद होता है, और वह जो होती है लेयर होती है एमनियोन होती है। इसके अंदर जो होता है एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है। देखिए ये एम्ब्रियो सपोज करिए, इसका डेवलपमेंट इसका यहाँ से चल रहा है, यहाँ से देखिए इसका डेवलपमेंट चल रहा है।
अगर ये डेवलप इसका चल रहा डेवलपमेंट इस तरह से, तो आप देखेंगे अगर हाँ इसमें लिक्विड के अंदर तैरता रहता है, लिक्विड है, इसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड एमनियन मेम्ब्रेन के अंदर है, तो कोरियन है ये एमनियन है, इसी के अंदर लिक्विड भरे हैं सब, और लिक्विड में एम्ब्रियो तैरता रहता, फ्लोट करता रहता है। यह देखिए फ्लूइड है, इसी फ्लूइड में सेल होती है, इंजेक्शन से इस सेल को ले, थोड़ा सा इसका फ्लूइड ले लेते हैं और ले करके उसको जो है देखते हैं कि क्या इसमें जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुए हैं, क्रोमोसोम नंबर प्रॉपर हैं, 47 नहीं हो रहे हैं, 45 नहीं हो रहे हैं, इससे तमाम जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा, पता लगा लेते हैं। अब पता लगा करके गड़बड़ी है, प्रॉपर डेवलप कर रहा है, कोई प्रॉब्लम जेनेटिक नहीं है, तब तो उसको डेवलप होने देंगे, वरना अगर गड़बड़ होने वाला है बाद में पता लग के करें क्या, तो उसका एवार्सन के लिए हमने बताया 1971 एक्ट ही बन चुका है। तो इसको, इस टेक्निक का नाम है इम्यूनोसेंटेसिस। इसलिए हम चाहते हैं एक स्वस्थ समाज की स्थापना हो। एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ लोगों से बनता है। अगर हमारा समाज में स्वस्थ लोग सभी लोग हैं तो समाज स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली जो प्रॉपर अगर हमारे यहाँ सोसाइटी डेवलप हो रही है तो निश्चित रूप से देश और प्रगति करेगा, पूरे विश्व में प्रगति होगी। तो इसके लिए एक टेक्निक हमने बता दिया आपको, इम्यूनोसेंटेसिस। इसका एक मिसयूज देखिए, बता दूं आपको ही, इसका लोग मिसयूज कर रहे हैं। इम्यूनोसेंटेसिस से आप जो है सेक्स ऑफ चाइल्ड बता दे रहे हैं। अब डॉक्टर इसको सेक्स ऑफ चाइल्ड में ये भी बताया जा सकता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो इज मेल और फीमेल, एक्स और XY क्रोमोसोम। तो इसका एक मिसयूज कर रहे हैं। तो मिसयूज कहाँ का बता दिए, पता चला कि लड़की है तो नहीं डेवलप करेंगे, तो भी ये करने लगेंगे MTP। अब इसमें यह किसका मिसयूज किया जा रहा है, ये सर्वथा गलत है, अननेचुरल है, इसको जो है सोसाइटी से अनसोशल भी है, अननेचुरल भी है, इम्बैलेंस करना नेचर को है, ये बहुत ही गलत है। करना कराना दोनों कानूनी अपराध बना दिया गया है। एम्ब्रियो टेस्ट करना, सेक्स टेस्ट करना और कराना। एक टेक्निक से और बता देते हैं, सोनोग्राफी मेथड है, तो सोनोग्राफी मेथड ही बताते हैं। किसी मेथड से इस चीज़ को बताने वाला और टेस्ट कराने वाला दोनों जो है कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आते हैं और निश्चित रूप से दंड के भागी होते हैं, दंड दिए जाते हैं। इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो ये बनी है टेक्निक किस लिए, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जानने के लिए, न कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड जानने के लिए, फ्यूचर बताने के लिए नहीं बनी है, बल्कि ये बताना जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं तो हो रहे हैं। ये टेक्निक हमने आपको बता दी, इम्यूनोसेंटेसिस। इस प्रकार से ART सेंटर पर इनफर्टाइल को फर्टाइल बनाने की हमने पूरी तरकीब आपको बताई, किस तरह से इनफर्टाइल कबूल को फर्टाइल कबूल में चेंज करते हैं। अब देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।